Yesterday we were talking about order of the reaction. Order can be 0, 1, 2, 3, or it can also be a fraction. But by seeing a balanced chemical equation, we cannot tell about the order of the reaction. For finding the order, you must have an experimental data, or we have the rate law expression. Rate law expression has the values of x and y, and order is the sum of value of exponential x and y. Okay, based on these informations we have solved this example number 4.3. ये हमने कल किया था. So let us move further. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम ट्रू पिक्चर नहीं दे सकते किसी भी रिएक्शन की. क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिएक्शंस विच कैन ऑकर इन वन स्टेप. एक स्टेप में होने वाले रिएक्शंस का नंबर बहुत कम है. ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शंस आर ऑकरिंग इन मोर देन वन स्टेप. ठीक है, तो एक स्टेप के बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर हम उसके ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते. ठीक है बच्चों, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है, एंड द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है, तो आपने ये एग्जाम्पल तो लिखा होगा अपनी कॉपी में, अपनी नोट्स में. उसके बाद यहाँ पे ये एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी दी हुई है, ये भी आप लिख लेंगे. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड when a sequence of elementary reaction gives us the product, the reactions are called complex reaction. ठीक है, तो अभी हम ये elementary reaction और complex reaction की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि order determination of order is different in elementary reaction and complex reaction. दोनों में order को find out करने के लिए different तरीके हम लोग देखते हैं. क्या देखते हैं? Let us move forward. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल से बताया ना. किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनेशन, ये सब जो मैंने बताया ना, आपने देखा है कितने स्टेप्स में होता है. ठीक है, वैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर हम ऑक्सीडेशन करें, इसका then we will able to find out the example of complex reaction, because oxidation of any hydrocarbon gives carbon dioxide and water, which is not a single step reaction, it is a complex reaction. Okay, or you can also see the nitration of phenol yields orthonitrophenol and paranitrophenol. This is also example of complex reaction. Okay, now let us move forward for finding out the unit of rate constant. As we know, rate is what? Rate is equal to rate constant K into molar concentration of A and molar concentration of B, having the exponentials x and y. Okay, so the order of the K is what here? K is rate constant. Okay, so today we will study how can we find out the unit of this rate constant. Okay, rate we have seen and molar concentration we have seen. We just have to find out the unit for rate constant. How can we find out this? Let's see. For the unit of rate is mole per liter per second. We have seen this in our very first class. Mole per liter per second. And unit of molar concentration is mole per liter. Okay, with the help of these two values we are able to find out the unit of rate constant. Okay, so let's see for different order reactions. Let me rub this first. Okay, now we just see the unit of rate constant for different order reaction.
ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ओके, आप यहाँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का ये जो इक्वेशन देख रहे हो, आपको ये एज इट इज़ उतारना है। ये दोनों रिएक्शंस आप उतार लेंगे। a प्लस बी गिविंग राइज टू c प्लस डी हैविंग द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट a b c and d। आप इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन भी देख रहे हो, ठीक है। x प्लस वाई गिव्स द वैल्यू ऑफ n, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द k हमें फाइंड आउट करना है। तो k के लिए हम क्या करेंगे, k को एक साइड कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग दूसरे साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यूनिट हमने देख रखी है। रेट की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। मैंने आपको बताया है पहले भी, अपनी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। रेट इज़ व्हाट, रेट जो है वो हमने डिस्कस कर रखा है। इट इज़ माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हमने डिस्कस किया है। तो रेट यानी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। और ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ए और बी, ये तो कॉन्सेंट्रेशंस ही हैं, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या देती है, n की वैल्यू। n इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अभी जो कॉन्सेंट्रेशन नीचे है वो जब डिनोमिनेटर में है, वो जब ऊपर आएगा तो ये इन्वर्स वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और दिस विल हैविंग द पावर n, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलेगा, k की यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ k फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, as you all see in table number 4.3, there is unit of rate constant for zero order, first order and second order reaction. Okay, try to see this. For zero order reaction, we first calculate the value of unit of k for zero order reaction. How is it possible? For zero order reaction, the value of k will be equal to the unit of rate, that is mole per liter per second, and 1 by concentration, it means into 1 by mole per liter, यानी mole and liter inverse. Okay, since it is zero order reaction, so the value of n will be 0 here, and 0 is giving the whole value as 1. ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन मोल पर लीटर, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा k का यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस वैल्यू इज ओनली इज द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ k, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ k विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, so before this I have to rub this. Let me rub this, then we will see the value of unit of k for first order reaction. Okay, for first order reaction k will be equal to unit of rate, that is mole per liter per second, into 1 by concentration. 1 by concentration means mole per liter. Now the power of this value will be 1 because this is first order reaction, and if it is having power 1, it means this value exists. Okay, now mole and mole will be cancelled out, and liter inverse will be cancelled out. Then what is the remaining value? Only the second inverse. Okay, so the value of unit of k for first order reaction will be second inverse only. ठीक है बच्चों, तो आप सिर्फ सिंपली
के की यूनिट की वैल्यू को देख करके आप बता सकते हो कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ये रिएक्शन अगर सेकंड इन्वर्स आपको दिखता है सिंपली, तो आप इसको बता सकते हो दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो now we will see the value of unit of K for second order reaction. Before this, let me rub this. Now the value of K for second order reaction. Order is 2 here, and the value of K is equal to unit of rate, that is mole per liter per second, then 1 by mole per liter, and here the power of concentration will be equal to 2 because this is second order reaction. So what is the value here? Let me write this: mole per liter per second into 1 by mole square and liter to the power -2. Okay, now what will be cancelled out? Mole, 1 mole value will be cancelled and 1 liter inverse will be cancelled. So what is the remaining value? The remaining value is mole inverse liter, लीटर नीचे है ना, नीचे से ऊपर आएगा तो वो लीटर हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड भी नीचे है, जब नीचे आएगा तो वो इनवर्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये आप देख रहे हो यहाँ टेबल में भी फाइंड आउट किया गया है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो नाउ यू आर एबल टू फाइंडिंग आउट दिस। Okay, I hope you are able to find out the unit of K for 0, first and second order reactions. Similarly, you can also find out these values for further order reactions for 3, 4. Okay, let us see the example number 4.4. What is this? Here you have to identify the reaction order from each of the following rate constant. यहाँ आपको rate constant की वैल्यू दी गई है, आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे आप ऑर्डर? यहाँ पे सिंपली आपको यूनिट्स दी हुई हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, आप यूनिट्स को देख के सीधे सीधे बता सकते हो कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है। फर्स्ट रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि आप देख रहे हो ये वैल्यू किसकी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की है, तो फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हम सेकेंड रिएक्शन देखें तो दिस इज द वैल्यू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स मीन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपली आप एग्जाम्पल में सिर्फ यूनिट को देख के बता पा रहे हो कि रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या है। ठीक है बच्चों, ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है बच्चों? Before dealing with molecularity, I have to rub this. Then you will be able to understand molecularity. So, let me rub this. Then we will see molecularity. What is molecularity? The number of reacting species, atom, ion or molecule taking part in an elementary reaction which must colloid simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. ये आपको दिख रहा होगा। Let me rub this first. Now you are able to see the definition clearly. तो आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, the number of reacting species, that is atom, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must colloid simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction. ये आपको लिखना है। ठीक है,
So now we have written the definition of molecularity. Let us see some examples. The breakdown of ammonium nitrite in nitrogen and water. In this reaction, you can see there is only involvement of one molecule of ammonium nitrite. So this is having molecularity 1. If we see the next example, this is having molecularity 2 because 2 molecules of HI is involved here. And if we see this third example, this is having molecularity 3. 2 molecules of nitric oxide and 1 molecule of oxygen. So the molecularity of overall reaction is 3. Okay. So molecularity of reactions having more than 3 molecules will not be the elementary reaction. It will always be a complex reaction. मतलब जिस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो रही है इसका मतलब वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा. ठीक है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता. इट विल प्रोसीड इन मोर देन 1 स्टेप्स. सो सच एग्जाम्पल इज वन गिवन हियर. द रिएक्शन ऑफ KClO3 एंड iron sulfate plus sulfuric acid giving rise to KCl plus ferric sulfate plus water. Here 1 molecule of potassium chlorate is reacting with 6 molecules of iron sulfate and 3 molecules of sulfuric acid. So what is the molecularity? What should be the order of the overall reaction? 1 plus 6 plus 3 मतलब कितना हो गया ये 10. तो ऐसा लग रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए. इट शुड बी अ 10th ऑर्डर रिएक्शन बट नो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो अब इसका हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर फाइंडिंग आउट द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सच रिएक्शन वी हैव टू डिटरमिन द स्लोएस्ट स्टेप बिकॉज दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. बच्चों जैसे आप रिले रेस वगैरह करते हो तो रिले रेस में रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है. रिजल्ट उस रनर पे डिपेंड करता है जो रनर सबसे धीरे दौड़ता है. वही रिजल्ट को डिसाइड करता है. जो रनर सबसे धीरे दौड़ता है वो रेस के दिन कितना तेज़ दौड़ा उस पर डिपेंड करेगा कि विनर कौन होगा. सिमिलरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी जो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम केवल जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को देख करके रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देगा. ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी बुक में दिया भी हुआ है. यहाँ पे सेम एग्जाम्पल भी शोन है. आप देख रहे हो रिले रेस का ही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे नोट करेंगे हम लोग. फर्स्टली लेट मी रब दिस. What is the definition of rate determining step? The overall rate. You are able to find out this? आपको दिख रहा है ये? Let me underline this. The overall rate of the reaction. रिएक्शन के पहले बच्चों हम कॉम्प्लेक्स ऐड कर लेंगे. ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी बुक में दिख रही होगी अपनी. आप इसको उतारेंगे भी तो आप लिखेंगे क्या, द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन के पहले हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि अभी बात किसकी हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ही बात हो रही है. ठीक है, द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो स्लोएस्ट स्टेप जो किसी भी रिएक्शन का होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही उसकी ऑर्डर को भी बताता है. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वैसे तो मॉलिक्युलरिटी की कोई बात ही नहीं होती, लेकिन अगर हो रही है तो वो ऑर्डर भी और मॉलिक्युलरिटी भी उसी से डिसाइड होती है. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन peroxide in the presence of iodide and in alkaline medium. ठीक है, सो व्हाट इज द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन. यू कैन सी दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा. H2O2 के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू 1 है और I माइनस के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू 1 है. तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर बिकॉज 1 + 1 = 2. लेकिन अगर हम H2O2 के रेस्पेक्ट में कहें तो ऑर्डर है रिएक्शन का 1
और आई के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है 1, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में 2 स्टेप में होता है। ये 2 स्टेप आपको दिख रहे होंगे एनसीईआरटी बुक में आपकी। यहाँ पे H2O2 इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 इज कंबाइनिंग विथ आयोडाइड आयन एंड फॉर्मिंग IO माइनस, है ना। ये IO माइनस क्या है, ये दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। और यही IO माइनस ही formation of IO minus this reaction intermediate will give the rate of overall order of the reaction, ठीक है। ये IO माइनस जो है ये इंटरमीडिएट यही रिएक्शन की रेट को डिटरमिन कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ही यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में H2O2 का नंबर भी 1 है, I माइनस का नंबर भी 1 है, यानी X की वैल्यू भी 1 है, Y की वैल्यू भी 1 है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो ओवरऑल है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रेस्पेक्ट में देखिए तो ऑर्डर 1 है, और आयोडाइड आयन के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है 1, बट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, ठीक है। तो और मॉलिक्यूलैरिटी भी यहाँ 2 होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है डिटरमिनिंग स्टेप से, वही मॉलिक्यूलैरिटी भी होती है। पर वैसे हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी की कोई बात ही नहीं करते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। मॉलिक्यूलैरिटी एग्जिस्ट फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। अब आप देख रहे होगे बच्चों, आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। आपको एनसीईआरटी में ये 1 2 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। दिस इज द डिफरेंस इन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से एज इट इज़ उतार सकते हो, या मैं आपको अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियरली दिखाती हूँ। ओके, लेट अस सी। Now students, we will see the difference in order and molecularity of a reaction. Order, it is the sum of exponents x and y in rate law expression, while molecularity, it is the number of reactants participating in elementary reaction. ठीक है, ये हमने देखा। The second difference is the order is integer, fraction, or it can also be 0, but molecularity is always integer. It cannot be 0 or fraction. Okay. The third difference, the order of the reaction is an experimental property, while the molecularity of a reaction is a theoretical property. Okay. There is one more difference. What is that? The fourth one. Order is determined for elementary as well as complex reaction. Okay. It can be found for elementary as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बताया था मैंने आपको बच्चों। बट फॉर मॉलिक्यूलैरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो मीनिंग। इट इज, आप चाहे तो डिफरेंस में ये भी लिख सकते हैं, इट इज हैविंग नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या आप चाहे तो आप सीधे सीधे ये लिखें, इट कैन बी फाउंड आउट can be found for elementary reaction. Complex reaction, the molecularity concept has no meaning. Okay. So these are 4 differences in order and molecularity. I hope you are able to understand this. Please write this in your notebook also. Thank you very much.